So welcome again. चलिए, let me ask some of the question before. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे आपकी जो है चैप्टर थोड़ा सा हम करेंगे. So first of all, Ram wants to study, but his uncle want him to work to earn money. Which right of Ram is abolished here? Which right of Ram is abolished here? Right here, hurry up. Write in chat box. I am asking the right. What is this study? I am asking the yes. Very good. Niti have given the correct answer. Very good. ना अब तो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है जल्दी से, है ना? So Ram wants to study, but his uncle wants him to work to earn money. Which right of Ram is abolished here? And the answer is right to education. क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके जो अंकल हैं वो उसको कहते हैं कि वो काम करे और मनी अर्न करे. तो राम का कौन सा राइट जो है यहाँ अबॉलिश हो रहा है? वो राइट है राइट टू एजुकेशन. नेक्स्ट, this soil is sandy and infertile. We can found it in Rajasthan mainly. You have to give me direct answer. Don't write it. Otherwise, other people started cheating it. The soil is sandy and infertile. We can found it in Rajasthan mainly. Name the soil. Yes, the answer is desert soil. Now, the last one is, which religion gives the freedom to follow any religion? Which religion gives the freedom to follow any religion? You have to write the right. Which I have written here wrong, है ना? That's why. मिस्टेक हो गई है ना? यहाँ आना था which right. Yes. Which right gives the freedom to follow any religion? Which right to freedom. Okay, it is also correct, but one particular right for it. One particular right for it. No, you people. Arnav, correct your right. Correct it. No, you all are right. Yes. First correct answer is from Niti. Right to freedom of religion. कोई right to religion लिख रहा है, कोई right of religion लिख रहा है. No. Right to freedom of religion. Right to freedom of religion. So this is the correct right. Yes. So beta, why I have shown you all these things? Because I want to say here one thing कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. इनको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. इनको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. Now let's discuss the back exercise question of chapter 16. First is, what is constitution? Read it thoroughly. आप अपने मन में इसको पढ़िए, क्योंकि after few minutes मैंने इसको बंद करके आपसे सुनना शुरू कर देना. So what is constitution? Constitution क्या है? A constitution is the basic set of laws according to which
अ कंट्री इज गवर्नड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है, कुछ बेसिक जो है वो लॉज है, रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एक कंट्री जो है वो चलती है, उसका रूल चलाया जाता है, उस पर रूल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू पीपल? Who is Amrit? Who is Amrit? Who is from Amrit? Ma'am, Who is there बेटा? Okay, Swarit. Swarit, चलिए बताइए जल्दी से, what is constitution? a constitution is a basic set of law according to a country is governed. According to which a country is governed. Now next, what are fundamental duties? What are fundamental duties? Mute रखिए खुद को बच्चे. What are fundamental duties? रणवीर, 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 are you there from Jasveer's ID? No. आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके कैमरा ऑफ है? इसलिए उनकी जो है वो अगर टर्न नहीं आती तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपके कैमरा ऑन होने चाहिए ताकि मैं आपके फेसेस देख के देन आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन। ओके, आभा, आभा, Yes, ma'am. आप बोलिए बेटा, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? The Constitution of India giving the citizens of our country some basic rights that cannot be taken away from them. These rights are called fundamental rights. यस, द राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसने हमें कुछ राइट दिए हुए हैं, कुछ अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, और वो जो राइट हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्लियर है? नाउ फैलन, 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 he never speaks, never. Who is other student? Let me check. Can I speak? Anhad, Anhad, बेटा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी बोला ही नहीं है ना, आई वांट कि वो भी बोले। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। विवेक, हु इज विवेक? यस बेटा बोलिए, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? What are fundamental duties? The duties listed in the Constitution for the people of India are called fundamental duties. ओके, जो ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं हमारे लिए उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ आई वांट जस्तेज, जस्तेज, Yes, ma'am. आप मुझे बताइए जरा, घर पे आपको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं एट योर होम? मैम घर पे
मैम टू स्टडी। ये राइट है आपका, हाँ गुड। और मैम मैम हेल्प ऑफ मदर इन वर्क्स। ये तो ड्यूटी है आपकी, ये तो आपने ड्यूटी बता दी। मैं राइट पूछ रही हूँ अभी आपके, कौन कौन से राइट मैम मिले बस हुए हैं इतना घर ही पे? पता है। बस स्टडी का ही राइट मिला है? ओहो। Can I speak, प्रियेशी ma'am? आप बताओ। Ma'am, प्रियेशी को excuse me, लगता है ma'am. बहुत राइट मिले हैं। प्रियेशी, प्रियेशी, यू पीपल आर वेस्टिंग माय टाइम ना। अर्नब बोलो जल्दी से। Ma'am, in home we are given some rights which are right to education, right to Okay. freedom of religion. Okay, no, these are the fundamental rights बेटा। आपने मुझे घर में बताने हैं, मम्मा ने आपको कौन कौन से राइट दिए हुए हैं? मम्मा ने दिए राइट? Yes, ma'am. Ma'am, इन yes, चीजों ma'am. को करने के लिए आप लोग घर पे जो है आप हो फ्री हो, जो आप कर सकते हो, इसकी परमिशन है आपको। Ma'am, my mother has gave me permission to watch TV only for for only to 10:45 p.m. of night. Not after that. I cannot watch TV. Okay, okay, And I have good. to start And homework at 3 p.m. always and okay, finish at 5 p.m. before going out to play. okay. तो यू थिंक दीज आर राइट्स? ये तो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसके बाद ये नहीं करना, इसके बाद ये नहीं करना। आपने जो राइट है ना उनको रिस्ट्रिक्शन की तरह बता दिया कि मम्मा ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये लगा दी, इतने बजे के बाद नहीं पढ़ना। 10:45 वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा है बेटा, वो भी मम्मा ने आपको ज्यादा ही दिया हुआ है ना। 10:45 तो बहुत लेट है, आपको तो तब तक सो जाना चाहिए, है ना। ये तो आपको गलत मिल गया। लेट मी आस्क मैं मनकरण। 10:45 के बाद जाके टीवी बंद होता है सो जाता हूँ। ओके, बट इट्स स्टिल टू लेट फॉर यू, स्टिल टू लेट है ना, लेट है। मनकरण वीर। मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग आप मुझे मैम। बताइए मम्मा ने आपकी ड्यूटी क्या क्या है घर पे? मैम ड्यूटीज, मैम Yes. मैम टू टेक केयर ऑफ माय लिटिल सिस्टर व्हेन माय मदर इज बिजी Okay, okay, she is too little. to keep all my surroundings clean Okay, good. And to first study and then I am allowed to play, only then. okay, so these are your duties. Okay, very good, good. And you are following your duties properly? You are following your duties properly? Yes ma'am. Then it's very good, very good. चलिए, let's we discuss the next point. फिर मैं बाकियों से भी पूछूंगी, ठीक है? बाकियों की टर्न भी आएगी। Firstly मैं पूछ लूं पहले। Now list the fundamental duties of the citizen of India. So you have told the duties of your at home. Now Garima will tell the fundamental duties of the citizen. Garima will tell. Garima भाग गई. She left. Huh? Avni Duggal. Good afternoon, ma'am. आपने क्या, बारिश हो रही है आप पे फूलों की? फ्लावर्स, हाँ, फ्लावर शावरिंग। चलिए बताइए जल्दी से फंडामेंटल ड्यूटीज। We must protect our environment. खुद को। हाँ, अब बोलिए अभी, सॉरी। We must protect our environment. गुड, नेक्स्ट। जल्दी से कोई 3 पॉइंट बताओ। We must protect our. ओके, करमन आप बताइए। करमन बोलिए, जल्दी से बोलिए, अब जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बोला कीजिए। करमन। Yes, ma'am. बोलो जल्दी से। मैम, हमारी सिटीजन्स ड्यूटी है कि
हमें फॉलो करने चाहिए रूल्स। बस मैम नो दिया मी तो आपने कम से कम 20 टाइम आपने मी लिखा हुआ था कि मुझसे पूछो, हैं पूछा तो आपने बताया कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट आई वांट टू आस्क गीतांग। गीतांग जल्दी जल्दी बोलिए। गीतांग हाँ बोलो बेटा। बेटा इतना तो टाइम ही है नहीं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट आई वांट टू आस्क फ्रॉम रक्षित। रक्षित why you people have raised your hand if you don't know the answer? Dhruv Duggal, Yes, ma'am. please beta, fundamental duties, Ma'am, question. answer। बोलो बेटा जल्दी। In the Constitution for the people of India are called fundamental duties. What are you telling? नीति आप बोलो। नीति Yes, ma'am. बोलिए। Ma'am, we follow the rules that is written on नीति आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, मे बी सम नेटवर्क इश्यूज देयर। सुजैन सिद्दीकी, सुजैन सिद्दीकी जल्दी से बोलो। नीति म्यूट बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए बच्चे जल्दी से ड्यूटीज बोलिए। और बाकी सभी लर्न करेंगे साइड बाय साइड, सभी लर्न करेंगे ड्यूटीज। इतनी देर आप सभी लर्न करेंगे। The duties listed in the Constitution for the people for India are called fundamental duties. Beta, I am asking the fundamental duties of the citizen of India. That means मुझे हर बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? List the fundamental duties of the citizens of India. This is the question, Suzanne. I think ध्रुव को भी यही गलतफहमी हो गई थी, है ना, कि मैम ना उसकी डेफिनेशन पूछ रहे। Ma'am, please. We must abide by the Constitution of India. We must respect our national flag and national anthem. Good. We must Good. respect public properties. We must conserve the environment. We must and so by feeling of once and brotherhood. Encourage है वो बेटा वर्ड, एंड वननेस एंड ब्रदरहुड। आप लोग बेटा लर्न करो, जितने वहां बैठे हुए हैं सभी लर्न करो। आप लोगों ने लर्न करना है। हिमांशु और others will keep mute themselves when I am asking the question. And Aryan, now your turn. Next turn is your after Himanshu. Good morning. After Himanshu, it's your turn. Yes, Good Himanshu. हाँ जी, good afternoon बेटा। बोलिए जल्दी से बोलिए। In the morning, I woke up and give the water in the plants. Okay. And I have exercise. I have exercise in the morning. This is your right or duty? You are telling me the right or duty? आप अपने जो घर पर राइट है आपको वो बता रहे हो कि ड्यूटी बता रहे हो? First you have told the duty कि you have to water the plants. This is your duty, है ना? This is your duty? Yes. Okay, and now you exercise. Okay. Yes. Next. And I study in the morning.
ओके आप खुद कंफ्यूज हो कि वेदर यू आर टेलिंग मी द राइट और यू आर टेलिंग मी द ड्यूटी। अब आप मुझे जल्दी से इंडियन सिटीजन के 2 ड्यूटी बताइए, इंडियन सिटीजन की, एज ए इंडियन सिटीजन 2 ड्यूटीज। नो चलिए आर्यन, आर्यन मैम यस। आर्यन आप मुझे बताइए बेटा 3 गोल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 3 goals mentioned in the Constitution of India. Okay, ma'am. Ma'am, right. Ma'am, D part. हाँ डी पार्ट, क्यों आप उसमें से चीटिंग कर रहे हो, ढूंढ रहे हो? मैम वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा था ना। अच्छा चलिए अब मेरी स्क्रीन पे अगर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अब अभी आप पढ़ के बोलो, सभी स्टूडेंट लर्न करते हुए दिखने चाहिए मुझे। आप आर्यन देख के बोलो। What are fundamental rights the Constitution of India gives the citizen of our country? आप कहते हो मैम आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो मेरी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 पढ़ो आप। लिस्ट 3 गोल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। List goals. Answer the question. ओके म्यूट करो, आपने पढ़ा नहीं है। कल जब डाउट सेशन होना है, टुमारो इज योर डाउट सेशन। एक तो आप सभी ने डाउट लेके आने एग्जाम से पहले, दूसरा आप लोगों को प्रिपेयर होने चाहिए 4 के 4 चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स। मैं किसी से भी कोई भी पूछ सकती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस the 3 goals mentioned in the Constitution of India. First is equality in the eyes of law. पहला गोल है कि लॉ जो है, कानून है, उसकी नजर में सभी इक्वल है, सभी इक्वल है। नंबर 2 रिस्पेक्ट फॉर ऑल इन द, कोई गरीब चाहे गर्ल है, चाहे मतलब वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, सभी को रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। नंबर 3 इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपको जो मौके मिलते हैं टू स्टडी एंड वर्क, सभी को इक्वल और फेयर जो है वो मिलने चाहिए चांस स्टडी करने के और वर्क करने के। नाउ नंबर 3 एक्सप्लेन व्हाई फंडामेंटल राइट्स। अब क्यों जरूरी है हमारे लिए फंडामेंटल राइट, क्यों जरूरी है? नंबर 1 फंडामेंटल राइट इसलिए जरूरी है बेटा कि इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स की डेवलपमेंट तभी होगी जब उनको ये राइट मिलेंगे। अगर राइट ही नहीं होगा उसके पास तो वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे स्टडी करेगा अपनी मर्जी से, कैसे वो किसी जॉब को जो है वो किसी जॉब को हायर करेगा, उसको कोई जॉब वाला, ठीक है। सो ये सभी जो है वो फंडामेंटल राइट ही हमें देता है। Second is they help all the citizens to lead their life in peace and harmony. सभी, अगर सभी को राइट मिले होंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा होने का चांस जो है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, पीस, शांति बनी रहेगी सब तरफ, ठीक है, बिल्कुल शांति वाला जो है वो माहौल रहेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। थर्ड इज द एम्पावर सिटीजन, जो सिटीजन है उनको पावर मिलेगी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, रिस्पेक्ट हासिल करे सोसाइटी में, और जो लॉ है उसको प्रॉपर फॉलो करे। अगर किसी को राइट मिलेंगे तभी वो लॉ को प्रॉपर जो है वो फॉलो करेगा। सो ये हमारे जो है वो 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नाउ जो हमारा सॉइल वाला चैप्टर है, अब सॉइल वाले चैप्टर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे पास अभी उसकी स्क्रीन शेयरिंग का ये मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स यू फाउंड इन इंडिया? जल्दी से लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? How many types of soils are found in India? 6. Name them. Hurry up, name them. Write their name. Write their name. Just say 66 है, 66 type of soil है, हाँ?
I am waiting who will write all the soils. Okay, Neeti. Okay, next. Neeti have written. Arnav. Spelling wrong है Arnav आपके. Yes, so 6 types of soils. Yes, Vinay. Alluvial soil, mountain soil, desert soil, red soil, black soil, and laterite soil. Now, next question is, why is laterite soil reddish in color? जो लेटराइट सॉइल है वो रेडिश क्यों होता है, रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो लेटराइट सॉइल होता है बेटा, उसके अंदर जो है वो होता है आयरन. उस अर्थ में वो जो सॉइल है उसके नीचे जो है डीप इन द अर्थ, वहां पर आपका जो है वो मिलता है आपका एलुवल आयरन. Excuse me, ma'am. Can I speak? एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों जो है ये मिलते हैं आपके. ठीक है, और ये जो है मिक्सचर है रेड सॉइल का, रेड सॉइल और क्ले का मिक्सचर है. और ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. दीज आर द 3 रीजंस, जो 3 पॉइंट्स हैं. क्लियर है? नाउ अब ये भी जल्दी से लिखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? अगेन इट इज वेरी इजी. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? Very easy. Can I, ma'am, speak? Soil. Black Beta, cotton why soil. you people are not writing? Why you people are not writing? You have to write in exam ना. तो आप लोग लिख के अपने इस टाइम जो है स्पेलिंग्स को भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. That's why I'm asking you to write. Lava soil, black cotton soil, spelling of Regur. Yes, Mankaran ke correct answer. Okay. Spelling you people, Regur soil ke spelling, Regur ke spelling you people are writing wrong. Man, yeah, cotton, only cotton soil. So 3, yes. Regur soil, black lava soil, and black cotton soil. These are the names of. सिमरप्रीत सिंह, आपने क्यों अपने आप को जो है वो अनम्यूट किया हुआ है? ओके, नेक्स्ट इज एशमीत कौर. एशमीत अनम्यूट करो. एशमीत जल्दी कीजिए, टाइम इज रनिंग बेटा. नो रिस्पॉन्स. हिमांक. Yes, ma'am. What is soil? Ma'am, soil is a... Others can write in chat box, but only to me. Direct message they will send. Direct message they will send. They will not send. Yes, Himank, you don't know? Okay, Kashvi, she is writing me. Yes, Kashvi. Good afternoon, ma'am. Hanji, beta, good afternoon. What is soil? Soil is the uppermost layer. Okay, good beta. आगे बोलिए. Soil is the uppermost layer of the. No, Mridul is there. Yes, Soresh. Answer please. Very good. आपके पीछे थोड़ी साउंड आ रही है. Yes, Soresh म्यूट कीजिए. Good. गरिमा, पहले भी आपने मीटिंग लीव कर दी थी. गरिमा. Yes, ma'am. ओके, अब आप मुझे बताइए, why soil is important? Why soil is important? Because it is depend on to give us clothes, medicines,
Shabash, shabash. Very good, very good. We Consolation depend on it for. material. Okay. Okay, good. 1 point you have told. The next point, Tanav. Tanav, you told the next point. You speak the next point. Sorry. We get depend on it for food. Already, Garima have told this point, beta. Other point, any other Okay, point, ma'am. if you know. Yes. No, no. Then it's Ma'am, okay. no. No problem. कल मैं आपसे सुनूंगी. मुझे कल चाहिए. सभी को आता हो. जयंतिका. Yes, ma'am. आप बोलिए बेटा. आप बोलिए. It is home to many organisms. Very good, very good. It is home to many organisms. Next is Sukhmani Kaur. Sukhmani Kaur. Sukhmani Kaur. Yes, ma'am. 24. आप बताइए बेटा. सुखमनी कौर की तो आवाज भी बहुत आ रही है पीछे से. ईशान प्रीत. Yes, ma'am.